लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? हम लोग लास्ट क्लास में वी हैव कवर्ड आवर perquisites, right? Today, what we are going to do, we are going to understand about the retirement benefits, like for example, the gratuity, the lease salary encashment, and there are so many retirement benefits which an individual can get, including the PF, the Provident Fund. Okay, so this is something which we are going to cover in today's session. I hope you are definitely going to enjoy the same, and let's start with our topic now. Okay, do you remember that when I started the salary chapter, it's almost about to be over in this week only, or maybe by today we will complete the same, but let's say it will take this week approx 2 more classes, then we will conclude our salary chapter. Okay, so do you remember when I started with our salary chapter? In that scenario, the salary is basically, I have divided these topics into basic salary. Then comes your DA, allowances, perquisites, and retirement benefits, right? So this is something which we have covered in our previous session. I told you that the salary chapter is divided into these 5 categories. Till now, we have covered the basic salary. We have also covered the DA, allowances, and perquisites. And today, and maybe by next class as well, we will be covering the retirement benefits part only. Okay? So let's start with our retirement benefits part. And first topic which I'm going to consider in today's session is related to your gratuity. Okay? And the first topic we are going to cover is gratuity. चलिए, अब ग्रेचुटी तो अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो ग्रेचुटी है ना, देयर माइट बी अ सिनेरियो व्हेन यू आर रिसीविंग द ग्रेचुटी ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट. ओके, सो लेट्स टाइप ग्रेचुटी received during employment. अभी जैसे आप लोगों ने बोला आप सेट इंडिया बिज के साथ काम कर रहे हो, राइट? सपोज करो द एंटिटी, आई मीन द सेट इंडिया बिज डिसाइड्स टू गिव यू द ग्रेचुटी during your employment only, right? So in that case, whatever the amount you're going to receive, it is going to be fully taxable. पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा. अब आप बोलो कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इट डज नॉट मैटर whether you are government employee, whether you are non-government employee, the amount is going to be fully taxable. Is that clear to every one of you? So at that time, or I would say during the service, if you receive the gratuity amount, the same amount is going to be fully taxable. Okay. Now there might be a scenario when you receive the gratuity at the time of retirement or at the time of resignation. Okay. So let's say this is a scenario where you have received the gratuity at the time of retirement or resignation. Suppose करो if you have resigned from the entity and आपने से 5 साल से ऊपर से काम किया है या नहीं भी किया, but the entity is giving you this gratuity amount because you have worked for the organization. In that case, this is the formula which we are going to apply, जो भी हम इसमें पढ़ेंगे. ठीक है? So gratuity at the time of retirement or resignation, it is exempt under section 1010. It is exempt under section 1010. But if it is exempt under section 1010, let's understand what would be the treatment in case of a government employee and what would be the treatment in case of a non-government employee. Okay, चलिए start करते हैं. Government employee को gratuity मिला at the time of retirement or resignation. In the first scenario, what I'm taking that the government employee have received the gratuity amount at the time of retirement or at the time of resignation. Okay. So this amount, see, I always told you, like
गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसे मानो कि वो तो घर का दामाद है, ठीक है। सो जिस तरीके से घर के दामाद की खातिरदारी की जाती है, द सेम खातिरदारी वी आर गोइंग टू डू फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। ओके, नाउ इफ वी हैव टू डू द खातिरदारी, ओके, or if we have to take care of them, so in that case, do you agree with this statement, and whatever the amount is received by the government employee as gratuity at the time of retirement or resignation, the same is going to be fully exempt? सो आप देखोगे, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, भले ही 20 लाख का ग्रेचुटी मिला हो, भले ही 40 लाख का ग्रेचुटी मिला हो, इट डज नॉट मैटर टू अस एट ऑल, इट इज गोइंग टू बी फुल्ली एग्जेम्प्ट। ओके, पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ सिनेरियो इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ओके, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और लेट्स से इट इज माय अदर एम्प्लॉय, ठीक है। अब इन दोनों के केस में, बेसिकली इनके केस में जहाँ पे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय और अदर एम्प्लॉय के केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक वेदर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज एप्लीकेबल टू देम और नॉट। ओके, तो इफ इट इज एप्लीकेबल, देन what would be the exemption amount? If it is payment of gratuity act, whether it is not applicable, अगर नहीं है तो क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। सो दोनों सिनेरियोज में, लेट मी टेल यू, दोनों सिनेरियोज में जो मेरा एग्जेम्पशन अमाउंट है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सेम डिफरेंटली। Okay, now let's understand what would be the exemption amount in in both the scenarios. Okay, let's talk about scenario 1 and then we will proceed further with our scenario 2. Okay, let's talk about a scenario where the payment of gratuity act is applicable. In that case, the exempt amount would be 15 by 26. 15 by 26. What is 15 by 26? Let me tell you the formula. एक महीने में अगर 30 दिन होते हैं तो 4 संडेज एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। वी हैव एज्यूम्ड कि एक महीने में 30 डेज होते हैं, उसमें से 4 संडेज वी हैव एक्सक्लूडेड, तो 26 डेज हो गए। और हमने मान के चला है कि हमने हाफ महीने काम किया है, मतलब हाफ मंथ ही काम किया है, ठीक है। That is the reason the formula is like this, 15 by 26. Is that clear? Multiply by salary per month, multiply by number of years of completion of service. Number of years of completion of service. Okay. So 15 by 26 multiplied by salary per month multiplied by number of years of completion of service. This is something which we are going to consider as exempt amount. Okay. Second is we need to compare the same with the actual amount received. Okay. So actual amount received से हम लोग इसको compare कर देंगे. And then third, the maximum amount, the maximum gratuity amount which can claim is 20 lakhs. 20 lakhs का आपका maximum amount है. तो exempt amount होता है whichever is lower. इन तीनों conditions में से जो भी lower amount आएगा, this is going to be your exempt amount. Okay. Now the question comes, as you are aware कि जैसे HRA है उसमें सैलरी अलग से कैलकुलेट करी, RFA में सैलरी अलग से कैलकुलेट करी, which was your rent free accommodation. So definitely if I talk about gratuity, तो gratuity में भी मेरा सैलरी थोड़ा अलग से ही कैलकुलेट होगा, right? So कैसे कैलकुलेट होगा, let's understand. इसमें जो मेरा सैलरी का डेफिनेशन है, जो मेरा सैलरी का डेफिनेशन है,
वो होगा बेसिकली लेटेस्ट बेसिक सैलरी पर मंथ, लेटेस्ट डीए। नाउ नॉर्मली हम लोग इन टर्म्स वाला लेते थे, इन टर्म्स मतलब विच इज बीइंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट। अभी हमें दोनों लेना है, तो दोनों मतलब चाहे इन टर्म्स हो चाहे नॉट इन टर्म्स हो, इट डज नॉट मैटर टू मी एट ऑल। आई हैव टू कंसिडर डीए, द होल अमाउंट, ओके, द होल अमाउंट ऑफ डीए इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड. So here we will consider the both amounts, whether it is in terms or whether it is not in terms, okay. So the DA amount is also per month. This is going to be your salary definition. Okay. Acha, I want to ask one question from all of you. When do you think the gratuity you would be liable for the gratuity amount? आपके हिसाब से आप लोगों को कब gratuity के लिए आप लोग applicable मतलब eligible हो जाओगे? Everyone agrees कि gratuity के लिए आप लोग 5 years में agree हो जाओ मतलब eligible हो जाओगे? हाँ? यस मैम। अच्छा, मैं एक और चीज बताती हूँ। अगर आप 4 years और 6 months से ज्यादा भी काम करते हो ना, 4 years और 6 months से ज्यादा भी काम करते हो ना, तो भी आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जैसे यहाँ पे लिखा है ना मेरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इसको करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो इसमें हमारा राउंड ऑफ हम ले लेते हैं। राउंड ऑफ का मतलब क्या है? राउंड ऑफ का मतलब है कि अगर मेरा 5 years 6 months मैंने काम करा ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तब तो ये 5 years ही रहेगा। बट अगर मैंने 5 years 6 months 1 day काम करा, तो ये मेरा 6 years मान लिया जाएगा, ओके। तो ये मेरा 6 years मान लिया जाएगा। 5 years 11 month काम करा, तो भी ये मेरा 6 years मान लिया जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ का मतलब है कि 6 महीने से ऊपर अगर आप जाओगे, ठीक है, तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स राउंड ऑफ होते जाएंगे। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? यस मैम। Okay, perfect. Now let's talk about a scenario where the Payment of Gratuity Act is not applicable. Now let me tell you when this act is applicable, Payment of Gratuity Act. So if an organization has more than 10 employees, okay, and you have worked for 5 years or more, ठीक है, आपने 5 साल या उससे ज्यादा काम करा है और ऑर्गेनाइजेशन के पास मोर देन 10 एम्प्लॉइज है, तो इन दैट केस ग्रेचुटी इज एप्लीकेबल। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Now this payment of gratuity act is not applicable, so if we are not falling into this category, obviously we will come into this category, okay. In that scenario, my exempt amount would be half multiply by average salary per month multiply by number of years of completion of service, okay. So half multiply by average salary per month multiply by number of years of completion of service. This is your exempt amount ka first option. Then you need to compare the same with actual amount received. Compare it with maximum 20 lakhs. Okay, whichever is lower. अच्छा, ये जो 20 lakhs है ना, ये मेरा लाइफ टाइम का लिमिट है, ओके। मतलब आप अपनी पूरी लाइफ में 20 लाख रुपए तक की ग्रेचुटी
का एग्जेम्पशन ले सकते। ओके, व्हाट डज दैट मीन? लाइक फॉर एग्जांपल, आपने फर्स्ट टाइम ग्रेचुटी का exemption लिया, लेट्स से 8 लाख का। सेकेंड टाइम आपने लिया लेट्स से 5 लाख का, ठीक है। थर्ड टाइम आपकी लेट्स से एग्जेम्पशन आ रही है 10 लाख, बट ये आपकी एग्जेम्पशन आ रही है एज पर द फॉर्मूला जो आपने लगाया, बट क्योंकि आप ऑलरेडी 13 लाख क्लेम कर चुके हो, सो थर्ड टाइम आपकी जो ग्रेचुटी की एग्जेम्पशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 7 लाख। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, तो पूरे लाइफ टाइम की जो एग्जेम्पशन है वो 20 लाख की है। ठीक है, now let's talk about the salary definition when the payment of gratuity act is not applicable, and also what do we mean by number of years of completion of service. Okay, salary definition. Average basic salary of last 10 months. Average DA in terms of last 10 months. And also average turnover commission of last 10 months. ठीक है, this is your salary का definition. Have you seen this definition somewhere? किसी चीज से मिलती जुलती है, याद आ रहा है? किसी चीज से मिलती जुलती है ये। एचआरए की डेफिनेशन से नहीं मिलती जुलती लग रही है आपको? यस मैम। बस एचआरए में एवरेज ही तो नहीं, बाकी तो सारा। लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। तो जब ग्रेजुएट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इन दैट केस सपोज यू हैव वर्क फॉर 11 इयर्स 11 मंथ्स, तो भी मुझे 11 इयर्स लेने हैं। सपोज करो आप 11 इयर्स 6 मंथ्स के लिए काम करते हो, तो भी आपको 11 इयर्स लेने हैं। आप 11 इयर्स 11 मंथ्स एंड 29 डेज के लिए काम करते हो, तो भी आपको 11 इयर्स ही लेने हैं। तो मतलब दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, व्हेन द ग्रेचुटी एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, इन दैट केस राउंडिंग ऑफ इज नॉट अलाउड। इज दैट क्लियर टू एवरीवन ऑफ यू? यस मैम। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्रेचुटी। वन बाय वन हम लोग सॉल्व करते हैं। आई एम शेयरिंग फ्यू क्वेश्चंस विद ऑल ऑफ यू, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन को रीड करो, प्लीज टेल मी इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आप लोग रीड करो। फुली एग्जेम्प्ट होगा ना मैम? फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, डू यू ऑल एग्री? देखो, सबसे पहले मुझे ये देखना है क्या ये मुझे सर्विस के ड्यूरिंग मिला है। द आंसर इज नो, है ना? ये तो मुझे रिटायर होने पे मिला है। ठीक है, तो ये जो ग्रेचुटी अमाउंट है, ये तो मुझे रिटायर क्या ड्यूरिंग सर्विस मिला है? क्योंकि ड्यूरिंग सर्विस में पूरा टैक्सेबल था। नो, ये मुझे रिटायर होने पे मिला है, वो भी किसको? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। और रिटायर होने पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। याद है या नहीं है, प्लीज टेल मी। तो 24 लाख भले ही मिला हो, लेकिन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होगा। बाकी जो भी लास्ट ऑन सैलरी ये सब, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। सी दिस, यही था। ग्रेचुटी रिसीव्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, इट इज फुली टैक्सेबल, and gratuity received at the time of retirement or resignation, it is received by government employee, it is fully exempt. Is that clear to every one of you? समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी।
यस मैम। अभी मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे रही हूँ। हेलो ये संतोष, हाँ जी संतोष जी। मैम, एक क्वेश्चन है, जैसे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं हाँ तो उनको रिटायरमेंट के बाद जैसे उनको रिटायरमेंट मिलता है 20 लाख 25 लाख या 30 लाख जो भी, और ये जो ग्रेजुटी हाँ, हम जो कहते हैं, तो दोनों सेम ही है या दोनों अलग अलग है, ग्रेजुटी और रिटायरमेंट? उनको अगर आप बोलो रिटायरमेंट मिलता है तो डेट मीन्स उनको क्या क्या मिल रहा है उसमें आपको वो देखना है। ओके। उसमें ग्रेचुटी भी हो सकता है, लीव सैलरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना उसमें। कैसे सॉल्व होगा ये बताओ, अगर आप थोड़ा सा भी गेस कर पाओ। मैम ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। हेलो। हाँ जी। प्राइवेट लिमिटेड एम्प्लॉय है, तो इसको बेसिक और डीए को ऐड कर देंगे, और हाँ जी। उसके बाद 15/26 इंटू 20 ईयर्स मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा ग्रेचुटी निकल जाएगा टोटल, और एक्चुअल रिसीव हुआ है 16,50,000। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय है कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज लुक इनटू द स्क्रीन। ओके, नाउ private sector employee covered under the Payment of Gratuity Act. Miss Verma retired from a private company which is covered under the Payment of Gratuity Act on December 2024 after completing 20 years and 6 months of service. Her last on salary was basic salary is given, DA is given, out of which 60% being part of retirement benefits. Commission is also given, which is a fixed percentage on turnover. She received a gratuity of 16,50,000 rupees. You need to calculate the taxable portion of the gratuity for the assessment year 25-26. Okay. Now listen to me very carefully. Do you all agree that we are falling into this category, non-government employee, where the Yes, ma'am. Payment of Gratuity Act is applicable, and I need to follow this formula. Exempt amount equals to 15/26 multiplied by salary per month multiplied by number of years of completion service. Need to compare it with actual amount received, and then maximum 20 lakhs I can take. The salary definition would be latest basic salary per month plus latest DA both per month, right? एंड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस की 6 मंथ तक है तो वही मंथ लेंगे, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अबव 6 मंथ है तो वी विल राउंड ऑफ द सेम, राइट? डू यू ऑल एग्री? सो Yes, इन ma'am. दिस सिनेरियो फर्स्ट वी विल राइट डाउन ग्रेचुटी received. The gratuity received is 16,50,000. Okay. Then less exempt under section 1010. Number 1, 15/26 multiplied by salary per month multiply by number of years of completion of service. Okay. Number of years of completion of service. ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग, 15/26 तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में तो इसको कंपेयर करना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव से, तो एक्चुअल अमाउंट जो हम इसमें रिसीव कर रहे हैं वो कितना है मेरा? 16,10,000 रुपए, राइट? थर्ड इज मैक्सिमम इज 20 लाख, तो यहाँ पे 20 लाख लिख देंगे। तो मुझे समझ में आ गया। अब मैं आगे, अगर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट इज एप्लीकेबल ना, तो नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस में rounding off is allowed, right? In this case, rounding off is allowed. 6 मंथ से ऊपर है। मुझे बताओ, here after completing 20 years and 6 months, please tell me, मैं इसको 20 years लूंगी या 21 years लूंगी? 21. Please tell me, 20 years या 21 years? 21 years. Why 21? इसमें
20 साल 6 महीने है ना मैम, और इसमें अलाउड है मुझे राउंड ऑफ करना। बट 6 महीने के ऊपर होना चाहिए ना, मैंने तो एग्जाम्पल भी लिया था। अच्छा, नहीं आपने डाला था ना 6 मंथ। 5 years 6 months, 5 years से लिया, बट 5 years 6 months, one day it is 6 years. ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा लिए, प्लीज टेल मी। 20 years. यस मैम। यस दीपा, 20 years भी हो गया। अब आता है सैलरी पर मंथ। तो सैलरी पर मंथ को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सैलरी पर मंथ सेज लेटेस्ट basic salary per month plus latest DA, that to both per month. तो लेटेस्ट बेसिक सैलरी इस क्वेश्चन में क्या है, मेरी बेसिक सैलरी 60,000 पर मंथ, राइट, और डीए है मेरा 15,000 रुपीज पर मंथ। इवन इफ 60% इज बीइंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मुझे तो पूरा अमाउंट ही लेना है। तो 60,000 प्लस 15,000, $75,000। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, प्लीज टेल मी। यस मैम। And if I solve the same, it would be 15,865,385। ठीक है, तो मुझे बताओ कि कितना आपको एग्जेम्पशन मिलेगा इस केस में। 8,65,385। Yes, 8,65,385। This is the exemption amount which you will receive, 784,615। ठीक है, ये अभी आप लोगों का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है इन सब चीजों का, या है आपका ये जो ग्रेचुटी वगैरह आप समझ रहे हैं, अभी आप लोगों का वैसे एग्जाम नहीं है कोई, जितना मुझे नॉलेज है। लेकिन जैसे मेरे मैं और भी सेशंस देती हूँ, वहां पे तो एग्जाम होता है, प्रॉपर एमसीक्यूज में आता है। तो उस केस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर ये एग्जेम्पशन अमाउंट पूछे क्वेश्चन, तो मेरा आंसर है 8,65,385। ठीक है, और अगर टैक्सेबल पूछे तो मेरा आंसर है 7,84,615। ठीक है, सो दिस इज वन मोर सब्जेक्ट विच आई टीच, जो सीएफपी करके एक होता है, वो मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एमसीक्यूज आते हैं उसमें। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स कि भाई आप पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो कि वो पूछ क्या रहा है, एंड अकॉर्डिंगली फिर आप उसको कैलकुलेट करो। समझ में आया या नहीं आया, प्लीज टेल मी। यस मैम। आई एम शेयरिंग वन क्वेश्चन विद ऑल ऑफ यू, रिक्वेस्टिंग एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज सॉल्व द सेम। चलिए, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। अभी ये मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ 2 से 3 मिनट का। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी, हुआ। टैक्सेबल वैल्यूज 925,192। ओके, आई एम वेटिंग फॉर आंसर्स, बाकी सब लोगों का भी। एवरीवन प्लीज calculate the same. I have received only 3 answers till now. Gratuity received is 20 lakh rupees less exemption under section 1010. There are 3 conditions: 15 by 26 multiplied by salary per month multiplied by number of years of completion of service. So 15 by 26. Please tell me number of years of completion of service मुझे कितना लेना है? 22 years and 8 months she has worked. 22 मैम। 22 years and 8 months कितना लेना है? कंप्लीटेड ईयर लेना मैम। 22। 23 नहीं लेंगे इस केस में। कंप्लीटेड। यस 23। Payment of gratuity act is applicable. अच्छा, सॉरी। यस मैम। Payment of gratuity act is applicable. 23 लेंगे, right? Salary per month applicable. Gratuity received, which is 20 lakh rupees, और मैक्सिमम भी आपका 20 लाख ही होता है।
और सैलरी पर मंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। वो होता है लेटेस्ट बेसिक सैलरी 65 प्लस लेटेस्ट डीए, तो दोनों 65,000 प्लस 60,000 81,000, राइट? यस मैम So it would be 1074808. So the lowest would be 1074808 925192. Is it clear? सबका आंसर ये आ रहा है? Is it clear? सबका आंसर यही आ रहा है? I hope it is clear to every one of you. हाँ? यस मैम आंसर कौन था? Do you have any questions? मैम अगर 2 एम्प्लॉयर से अगर मिलता है ग्रेजुएटी तो फिर उस केस में 20 लाख होगा या सिर्फ 20 लाख ही होगा? 20 लाख ही होगा। ओके मैम। तो अगर 2 एम्प्लॉयर से मिलता है तो एक काम करते हैं, 2 एम्प्लॉयर से हम रिसीव कर लेते हैं, ठीक है? एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी फ्रॉम मल्टीपल एम्प्लॉयर्स, ठीक है? चलो एक बार आप बताओ कैसे सॉल्व होगा, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो फिर बताओ कैसे होना चाहिए। मैम फर्स्ट एम्प्लॉयर से तो एग्जाम्प्ट रहेगा हाँ, और सेकंड वाले से हमें जो ग्रेजुएटी एक्ट में कवर्ड है तो 15/26 और फिर जो इसकी सैलरी होगी लास्ट 15 और ये 65,000 25,000 को जोड़ के एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें बेसिकली तीनों कंडीशन एक बार लगानी है। तो 12 लाख रुपए मिले, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 20 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट, बट इस 20 लाख में से डू यू एग्री 8 लाख रुपीज मतलब एग्जाम्प्ट लेट 2015 में, तो मेरे पास जो मैक्सिमम लिमिट है वो 12 लाख की ही बची है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। और अब आता है 15/26 मल्टीप्लाई बाय सैलरी पर मंथ, ये आएगा मेरा 90,000 रुपीज। 65 + 25 90,000, राइट? मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, 10 इयर्स ही है। जो सेकंड एम्प्लॉयर उसके साथ तो 10 इयर्स ही है, तो यस ये आएगा मेरा 15/26 519,231, ये वाला इधर आ जाएगा, ये मेरा एग्जेम्पशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक। मैम लास्ट वाला पॉइंट क्या बताया था? लेस देन 5 इयर्स अगर काम करा है तो ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं है। राइट। लाइक मतलब नहीं वो मैं सुन नहीं पाया था, वो आवाज में गड़गड़ा रही थी, तो लेस देन आपने बोला फिर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। ओके, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ, क्वेश्चन ये था, पहले ये सुन लो कि ग्रेचुटी क्या मैंडेटरी है या जस्ट मतलब कैसे भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए देना, या फिर वो कंपनी रिफ्यूज कर सकती है या उनकी पॉलिसी में होना जरूरी है। तो आंसर ये है कि अगर कोई एंटिटी अपनी पॉलिसी में मेंशन ना करे कि वो ग्रेचुटी देगी, ठीक है, तो भी वो एंटिटी क्या कर सकती है, उसको ग्रेचुटी देना मैंडेटरी है अगर आपने 5 साल से ऊपर उसके लिए काम किया है। I have seen or I have been with few organizations as a consultant where they want to avoid the gratuity payment. जैसे एक एम्प्लॉय था, 10 साल काम किया उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, and that employee demanded the gratuity amount, but the employee wanted to refuse this expense, avoid this expense. ठीक है, तो क्या एम्प्लॉय के पास ये राइट है कि वो ग्रेचुटी ले सके या क्लेम कर सके क्योंकि उसने 5 साल से ऊपर काम किया है? द आंसर इज यस, ही हैज द राइट। इवन इफ कंपनी सेज कि मेरी तो पॉलिसी ही नहीं है ग्रेचुटी देने की, इट डज नॉट मैटर एट ऑल, द कंपनी इज लायबल टू पे द ग्रेचुटी अमाउंट। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, हाँ ठीक है। डू यू ऑल हैव एनी अदर क्वेश्चंस इससे रिलेटेड? किसी और के और कोई क्वेरीज है? नहीं? So, since I am not receiving any questions from any one of you, so I'm winding up the session for now. Let's meet in our next session, जिसमें हम pension वगैरह करेंगे, pension and leave salary, and then almost हमारा salary chapter is completed. ठीक है?
फिर एक थोड़ा एनपीएस वगैरह के बारे में जान लेंगे, देयर इज नेशनल पेंशन सिस्टम, एंड देन आई विल टेल यू पीएफ तो है ही, उसके बाद साथ के साथ मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरीके से टीडीएस कैलकुलेट होता है सैलरी इनकम पे, ठीक है? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. Please do let me know if you have any questions, otherwise let's meet in our next session.